ना करेंगे डटकर, अब रुकेंगे हम मंजिल पर पहुंचकर, ऐसी सुनाएंगे सबको तान, यही है भारत की शान। अब मर्करी पीक फॉर्मेशन में हमारे डेयर डेविल्स यह दोनों सिग्नल के अद्भुत संतुलन, कौशल और लगन को दर्शा रहे हैं कि बर्फीले प्राचीन में, रेतीले गरम मरुस्थल में हर जगह डटे हैं ये। और अब इन्फो वॉरियर्स पूरी तरह से मुस्तैद, सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए, पैनी निगाहें, सटीक संचार, चूक की कोई गुंजाइश नहीं, जैसा नाम वैसा गुण। और ये देखिए में ह्यूमन पिरामिड जैसे चट्टान की दीवार, हर डेविल हिमालय, हर डेविल आंधियां आए तो सही, हमने बोला कोई आंख उठाए तो सही। और अब आपको लेकर जाएंगे दिखाने आसमान। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी महिला पुलिस कर्मियों को यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में नाइजीरिया भेजा है। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Next on Kartavya Path, we have the student Ministry of Railway Protection Force Band, proudly led by Head Constable Sudesh Ganseri. The brass band consists of 42 personnel. भारतीय तटरक्षक शत्रुओं पर अंगार की तरह बरसते हैं। तो उसी जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के समक्ष देश के हित और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध आप देख रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता, जो सुरक्षा नामक धुन बजा रहे हैं। नसीबी कमान उत्तम अधिकारी पखरूल विभाग संभाल रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला वसुंधरा एवं अधिकारी जय हो भारत देश, जय अशेष सदैव विशेष, जहाँ न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल विकास का प्रवेश, जय हो भारत देश। और अब भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद तैनात भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता। यह guardians of the sky adorning blue, pride of the nation, heads held high, in march with glory they touch the sky. First off, the Indian Air Force Band, consisting of 72 musicians, consisting of 22 Agniveers and 3 drum majors, led by Sergeant Charles Anthony. Stepping forward in perfect synchronization with the melody and power of military music, we have the combined military band of 40 in Gorkha Training Center, Artillery Center, Nashik and 3 electronic Steady. The next contingent is the Mahar Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh. It was formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar. The Mahar Regiment has been honored with 12 Plato honors and 9 Bati honors. की 18वीं बटालियन की मेजर विक्रमजीत सिंह के हाथों में यह रेजिमेंट डोगरा राज्य के महाराजा गुलाब सिंह द्वारा राज्य बलों के तौर पर सन 1820 में गठित की गई। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष, दुर्गा माता की जय। वाद्य यंत्र बजाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। जी हाँ, आपके सामने देवी और सजनों बड़ी शान से वाद्य यंत्रों के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाती जोशीली धुन से उत्साह करता। अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त। आदर्श वाक्य संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष, जाट बलवान, जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles, led by Lieutenant Rohit Lakshman Kudache. The Garhwal Rifle is one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts. Shift your gaze towards the skies. Heralding the parade and showering flower petals, the Indian Air Force Mi-17 one-way helicopters flying in the Dhwaj formation. Formation leader today is Group Captain Alok Ehlawat, trooping the national flag and formatting on it. The helicopters are carrying the ensigns of the armed forces. The helicopters from 109 Helicopter Unit proudly flying with the unit's motto, Shaurya Sarva Dharmanam Dharma, which implies valor is the... परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सधे हुए सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबू। The air comes alive with the symphony of 300 artists, a magnificent blend of India's soul and spirit. This unique ensemble, created by Ministry of Culture, features a vibrant mix of indigenous wind and percussion instruments resonating with the melody, rhythm and spirit of a billion Indian hearts.
Each note is a tribute to our unity in diversity. So as the music swells, let it remind us of the unyielding spirit that binds this nation together. की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट शुभम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कर्तव्य पथ पर आज लेफ्टिनेंट कमांडर सनिल उमेश पारुलेकर एवं मेजर अवनीश छेत्री माननीय राष्ट्रपति महोदय के एडीसी के पद पर तैनात हैं। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी की कमान दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे हवलदार प्रदीप सिंह रावत। बैंड द्वारा राष्ट्रगान और अर्जुन की धुन बजाई जाएगी। इस दस्ते में मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर के संगीतकार भी शामिल हैं। पाइप्स एवं ड्रम्स बैंड दस्ते का नेतृत्व सूबेदार ब्रजेश कुमार कर रहे हैं। यह बैंड जय जन्मभूमि एवं संगम दूर की धुन बजाएंगे। इस बैंड में आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद और ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर के संगीतकार शामिल हैं। और आज कर्तव्य पथ पर पहली बार नारी शक्ति को उजागर करती पीएम श्री स्कूल झारखंड के गर्ल्स बैंड का दस्ता अपनी गौरवशाली उपस्थिति से शोभा बढ़ाते हुए। और अब आगमन हो रहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनका काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ। राष्ट्र के हित कर चले सब कुछ हमन तुमको नमन है। विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है नमन उस देहरी को जिस पे तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी। पीछे बुलेट ट्रेन से स्टंट करते हुए डेयर डेविल्स हृदय में धड़कती देशभक्ति के गजब का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए कि हर विपदा से लड़ रहा है भारत। और अब शीघ्र आप देखेंगे कैप्टन जनरल बाकी को 12 फीट लैडर के ऊपर से राष्ट्रपति महोदय को सैल्यूट देती हुई रुकूंगी नहीं, ओंकार करूंगी, सपनों को साकार करूंगी, हौसलों के पंख लगाकर दूर तक उड़ूंगी। साथ ही सिंगल फाइटर फॉर्मेशन के माध्यम से अपने निशान को बड़ी शान से लहराते हुए और बताते हुए कि भारत माँ के सपूत है, हम माँ की रक्षा में सीना ताने खड़े हैं। और ये देखो योग और व्यायाम करते हुए क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, ये बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। और अब देखिए डेविल्स डाउन फॉर्मेशन, हम हौसलों के शेर हैं, दिल के दिलों में, पर्वत हमारे सामने मिट्टी के ढेर हैं। साथ ही प्री फॉर्मेशन सिंगल कोर की संचार व्यवस्था का संदेश देते हुए और वाले हमसे आए नए उजाले। और अब हमारे वीर गति को प्राप्त वीरों को आज की गौरवान्वित दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए हमारे डेविल्स बताते हुए कि आपके बलिदान को हम अपने सिर का ताज बनाएंगे और रक्षा में सदैव तत्पर रहेंगे।